आज हम आ चुके हैं मलाड में, जो कि मुंबई के सबर्ब्स का फूड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्ट्रीट फूड कहो या कैफेज, यहाँ सब एक से बढ़ के एक मिलता है। लेट्स सी यहाँ के फूड का टेस्ट कैसा है। और लेट्स स्टार्ट विद सरनिया तिब्बतन किचन, एक छोटा सा एशियन फूड सर्विंग स्पॉट है। तो हम मलाड फूड टूर की शुरुआत करने वाले हैं सरनिया तिब्बतन किचन। वेरी पॉपुलर, बट काफ़ी कम लोगों को ये स्पॉट पता है। स्टाफ थे वो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने पहला स्पॉट अपना ओशिवारा में ओपन किया था, बट यहाँ पे इनका मलाड में भी है। यहाँ पे बहुत ही अलग और तिब्बतन काइंड ऑफ आपको कुजीन मिलता है। आप इनके मेन्यू में भी देखोगे जो भी डिशेस हैं, उनकी जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड हर डिश का जो नाम है वो तिब्बतन लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे जशा मीन्स चिकन, न्याशा विच इज़ सी फूड स्टार्टर, पक्षा विच इज़ पोर्क starter. So again, that's a good regional touch and the variety here is very good. Again, as I was telling, मैं यहाँ पे एक चिकन में इनका मोमो लेने वाला हूँ। चिली गार्लिक पैन फ्राइड मोमो, दिस इज अ चिकन वर्जन। Lots of spicy chili garlic sauce, pan fried momos topped with spring onions. One thing which is looking quite good is the size of the momo. Look at this. यहाँ पे बाजू में 3 चटनीस हैं, but I am having it as it is because that's how I would like to taste the spices and the sauces first. First impression, taste of garlic, super good, good spicy, spring onion on the top, so that gives a different and altogether a great flavor. One plus point is the layering is just perfect. Not too chewy, not too thick. It's perfect, thin layered. Chicken on the inside is just very simple, a bit of salt, pepper. That is it. It's perfect. One good thing is that it's not too heavy. If I show you, look at the chicken on the inside. It's chunky, it's juicy, it's moist, loads of garlic. But what I really like is it's not excessively spicy and quantity wise भी काफ़ी अच्छा है। 6 बड़े pieces हैं, tossed in nice chili garlic sauce with perfect layer of the momo and very well done. In this locality in general, Malad, Goregaon, Andheri and all these places काफ़ी सारे popular momo spots already हैं. So I wanted to do a place which is amongst the local, it's very well known, but I wanted other people around as well to be aware about places like this. So I read it somewhere that ये place काफ़ी अच्छी है. So I thought of giving it a shot and it's actually very good. The sauce जिसमें इसको टॉस किया हुआ है, it's very good. Even the momo layering, super good. There are 3 sauces बाजू में, but I thought to have it as it is. We've also gone with one noodles, flat noodles, spicy one, जो यहाँ पे locals favorite है और staff ने भी recommend किया, वो भी try करेंगे. But these momos have to be 10 out. So these are the flat noodles. These are some kind of spicy flat noodles. इसका नाम क्या है मैं आपको नीचे स्क्रीन पे डाल दूंगा. They are tossed in chili oil, loads of vegetables. In vegetables there is cabbage, capsicum, onion, spring onion. Look at that. Oily, greasy, but the kind of oil which you would like. At least I am liking it. It's not that spicy. It does look spicy, but उतना spicy नहीं है. The content of noodles अच्छा खासा डाला हुआ है. ऐसा नहीं कि वो वेजेस डाल दें सिर्फ और नूडल्स ना डालें. One plus point is that this is not heavy, even though you can see a lot of oil, but it's very subtle. Just a bit of spices and then उसको एक चिली सॉस में या चिली ऑयल में उसको टॉस किया with great amount of vegetables. ये जो vegetables हैं ये cubed है. आप देखोगे ना यहाँ पे ये सी. This is spring onions, capsicum. There's a bit of broccoli in here. So this is cubed, not finely chopped. But again, really like it. These are my kind of noodles. If you like flat noodles, I feel you should give this a try. You can try in chicken. I am trying it in veg, but still it's pretty good. So there is one dry kind of a chili paste. Then there is this chutney, and there is then one more here. So I'll take this one. This looks like a lot like a garlic chutney. Let's top it. अच्छे से. Our chutney is a bit spicy. Has a tinge of green chili, bit of garlic. Very fresh. They do take some time to make it, but it's fresh. I personally liked it. Very good. सरनिया तिब्बतन किचन के बाद हम गए थोड़ी देर वॉक करके कुतुज ईरानी चाय में. यहाँ पे चिकन शवरमा, चाय बन मस्का, कीमा पाव, ये सारे डिशेस काफी पॉपुलर हैं. यहाँ आने का सडन प्लान बन गया और ट्राई किया चाय बन मस्का. The next spot is going to be कुतुज ईरानी चाय. It's a very popular spot. वैसे तो ये मेरे प्लान में था नहीं. I was walking and मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, शौरमा खा रहे हैं, चाय बन मस्का पी रहे हैं. Then जब मैंने गूगल पे जाके देखा तो I did see a lot of good positive reviews. So I am here trying their chai bun maska. Here is how the bun maska looks like. नीचे आपने मेकिंग देख ली एंड साथ में यहाँ पे मलाई वाली ईरानी चाय. Look at this. This is how the bun maska looks like. Bun एकदम soft. Chai on the sweeter side.
चाय थोड़ी सी स्वीट है, ढेर सारी उसमें मलाई डाली हुई है। दिस प्लेस वॉज वेरी रैंडम जहाँ बस मैं आ गया, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक्चुअली चाय बन उसका ही ट्राई करूँगा। इसके अलावा भी वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू ट्राई एंड हैव फूड, बट इफ आई हैव टू सजेस्ट टू, यहाँ पे आपको मटन कीमा, शौरमा, ये सब भी काफ़ी अच्छा मिलता है। वन थिंग विच आई फील hygiene could have been just a bit better. I purely came because I saw a lot of crowd, then I saw kind of positive reviews on Google, but hygiene I feel could have been a lot better. I'm just having chai bun maska here, which if I talk about, it's good. Bun is soft, has good amount of butter, थोड़ा sweet भी है bun, और फिर चाय भी थोड़ी sweet है। चाय के ऊपर भी ढेर सारी मलाई डाली हुई है। A decent spot. Some things could have been a bit better. That's what I feel. But in general, decent spot for chai bun maska. यहाँ से बढ़ के आगे हम पहुंच गए स्टैक्स एंड रैक्स में, जो कि एक पॉपुलर स्पॉट है फॉर बर्गर, स्टेक्स एंड हॉट डॉग्स। यहाँ पे अमेरिकन स्टाइल डिशेस सर्व करते हैं। आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ स्टैक्स एंड रैक्स में टू ट्राई सम बर्गर्स। स्ट्रीट फूड तो हम टिपिकली करते ही, बट आई थॉट ऑफ डूइंग बर्गर्स एज वेल। जो ऑडियंस वैसा काइंड ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड, उनके लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। पर्सनली भी मुझे यहाँ पे आना था बिकॉज यहाँ का मेन्यू इज़ वेरी गुड, द वाइब ऑल्सो इज़ वेरी नाइस। दे सर्व अमेजिंग काइंड ऑफ बर्गर्स एंड दे सर्व स्टेक्स, grilled chicken along with mashed potatoes, amazing variety. You can see it in the menu as well. There is wraps. तो मैंने अपने लिए यहाँ पे इनका स्लोपी जो चिकन में ऑर्डर कर दिया है। इनके पास हर बर्गर में ना बीफ एंड चिकन दोनों की वेराइटी है, विच एवर यू वांट टू ट्राई। सो आई वेंट विद स्लोपी जो चिकन एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग देयर फ्रेश टाइम सोडा। सो दिस इज द स्लोपी जो चिकन, looks like a lot of minced chicken with a bit of cheese sauce, caramelized onions, and loads of peri peri fries on the side. The buns are toasted really well. Look at that. Loads of caramelized onions, liquid cheese, melted one, and loads of chicken. I also love how the bun looks like. Toasted to perfection, lots of sesame seeds. Quite messy, quite floppy, as it's supposed to be. Let's try it. Wonderful. The burger is fantastic. The buns are too good. The chicken on the inside is minced to perfection. Has a bit of that chili sauce का फ्लेवर एंड टेस्ट उसमें। ढेर सारा उसमें चीज़ डाला हुआ है। Loads of caramelized onions and I love the buns. Buns are toasted to perfection. Just a bit crisp from the above, and as soon as you start eating the bun, it's very soft, it's very moist. Loads of butter. And look at the amount of oil in that sloppy Joe chicken. And what I really love is how good this smells. And there is a bit of sweetness in there simply because of the amount of onion being used. It's like हम चिकन कीमा कैसे खाते हैं वैसा ये काफ़ी मिन्स्ड चिकन है, बहुत ही डिलिशियस। जस्ट कंसिडर इट एज लाइक हम चिकन कीमा कैसे खाते हैं उसको बर्गर में डाल के दिया है, बट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एंड आई लव हाउ काइंड ऑफ अ मेसी दिस इज। लाइक आई एम नॉट अ फैन ऑफ माई बर्गर टू बी मेसी, बट आई वुड प्रिफर दिस। That cheese sauce is doing the job. I totally love the entire presentation. The fries are perfect. Has a bit of peri peri seasoning to it. This is a bit on the sweeter side because of the amount of caramelized onions being used in the preparation. और उसके ऊपर चीज़ के ऊपर भी डालिए caramelized onions. चीज़ भी हल्की सी sweet but has a good creamy texture. चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो यूज़ की हुई है, और लिक्विड चीज़ है ऑफ कोर्स। If you are here, try this burger. There is one more which is called the Stacks and Racks Smash Burger. Even that is fantastic. उसमें डबल चिकन ग्रिल पैटी आती है। I wanted to try this one. You can try the other one as well. And apart from that, बहुत अच्छी वैरायटी है। Let's also try the lemonade. Quite refreshing. I am super impressed. Great spot for burgers here in Malad. एंड में आ गए वॉक करके कुसुम रोल्स में, जो कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से यहाँ आया है। यहाँ पे सेम वैरायटी के काठी रोल सर्व होते हैं जैसे कोलकाता में मिलते हैं। मैंने यहाँ पे एक चिकन काठी रोल ट्राई किया जिसमें पराठे के अंदर चिकन, अनियंस, लाइम एंड सॉसेस को व्रैप करके डाला हुआ था। नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज कुसुम रोल्स। इंटरेस्टिंगली ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये कुसुम रोल्स वही है जो पार्क स्ट्रीट में कोलकाता पे। अब आज से 2 साल पहले जब मैं कोलकाता गया था तो मैंने वहाँ पे भी कुसुम रोल्स का रोल खाया हुआ है, तो मुझे पता है कुसुम रोल का जो रोल है उसका टेस्ट कैसा होता है। बट क्योंकि ये मलाड में भी है विच आई डिडंट नो, तो आई वाज लाइक टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट क्या वैसा ही है जैसे हमने कोलकाता में खाया था, विच बाय द लुक्स ऑफ इट लग तो काफ़ी सिमिलर रहा है। आई हैव गॉन विथ वन सिंपल चिकन रोल जिसमें मैंने एग नहीं डलवाया है। ट्रेडिशनल कोलकाता स्टाइल काठी रोल में जो चिकन है या जो भी मीट है
वो बैम्बू स्टिक्स पे पकना चाहिए मीट जो होता है, इसीलिए उसको काठी रोल बोलते हैं। एंड यहाँ पे वैसा ही वो पकाया जा रहा है। बड़े से एक मैदे वाले पराठे के बीच में उन्होंने ढेर सारी चिकन, अनियन, हल्के सी सॉसेस, मसाले डाले हुए हैं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लोड्स ऑफ अनियन, हल्की सी एक ग्रीन चटनी, दैट्स इट। मैंने एक नहीं डलवाया है, आप एक डलवा सकते हो। इसमें वैरायटी है, डबल ट्रिपल एग चिकन, डबल एग चिकन। एक्चुअली वेरी गुड। इस रोल में हल्की सी वो स्पाइसी टैंगी चटनी है। अगेन दिस इज़ नॉट दैट स्पाइसी, हल्का स्पाइस बट अ गुड अमाउंट ऑफ टैंगीनेस। ढेर सारा इसमें लेमन डाला हुआ है। लोड्स ऑफ अनियन, जो चिकन वो डालते हैं उसमें भी वो ढेर सारा अनियन उसमें मिक्स करते हैं। वो चिकन पूरी कुक ही अनियंस में होती है एंड अलग से ढेर सारा इसमें अनियन जाता है। सी नाउ आई विल स्टार्ट शोइंग यू हाउ द रोटी लुक्स लाइक। पहले रोटी पूरी ढकी हुई थी, ये देखिए। द रोटी लुक्स वेरी नाइस, क्रिस्पी, फ्लेकी। However, will I call it like the exact same one which I've had in Kolkata? Or probably not. You know, I just felt the one which I had there had much more chicken. The flavor there was a bit more smoky. वहाँ पे हल्के ग्रीन चिलीज भी डाले हुए थे। रोटी काफ़ी अच्छी है, चिकन काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी मॉइस्ट है। जो रोटी है बाहर से काफ़ी अच्छी है, हल्की क्रिस्पी, हल्की चुवी। आई जस्ट फील चिकन थोड़ी और ऐड हो सकती थी, जस्ट टू गिव इट अ मोर मीटी फ्लेवर, बिकॉज अनियन काफ़ी ज़्यादा है, रिलेटिवली चिकन थोड़ी कम लग रही है। बट अगेन वेरी सिंपल, लाइम, अ बिट ऑफ सॉसेस, चिकन, अनियंस, जस्ट फ्लेकी एंड क्रंची पराठा। टू गुड। ये आपको ट्राई फॉर श्योर करना चाहिए। दिस इज़ वेरी क्लोज टू इट बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट वन, बट परफेक्ट। तो ये थे कुछ प्लेसेस जो मैंने मलाड में ट्राई की एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट स्पॉट्स।